children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read The Selfish Giant. Selfish means जो स्वार्थी होता है, जो केवल अपने बारे में सोचता है और औरों के बारे में नहीं सोचता. Now get ready. This story talks about a wicked and selfish giant who lived alone in his garden. He never liked children to play in his garden, but one day his heart melted to see an innocent child, and he was wicked no longer. Have you ever heard a story of any giant? Narrate it in the class. ये जो स्टोरी है किसके बारे में है? एक सेल्फिश जायंट के बारे में, जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश था और बच्चों को अपने गार्डन में नहीं खेलने देता था. लेकिन जब उसने एक इनोसेंट चाइल्ड को देखा तो वो टोटली चेंज हो गया. अब वो विकेड नहीं था. तो अगर आपने कोई ऐसी स्टोरी पढ़ी है किसी जायंट के बारे में तो क्लास में उसको नरेट करिए. नाउ रीड द स्टोरी. एवरी आफ्टरनून एज they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. One day, the giant came back. He had been to visit his friend, the Cornish ogre, and had stayed with him for 7 years. After the 7 years were over, he returned to his own castle. When he arrived, he saw the children playing in the garden. "What are you doing here?" he cried in a very gruff voice, and the children ran away. हर आफ्टरनून में बच्चे जो है गार्डन में, जायंट के गार्डन में खेलने आते थे. गार्डन जो है वो सेल्फिश जायंट का था. अब जो जायंट था वो वहाँ नहीं था, वो अपने फ्रेंड के वहाँ गया हुआ था, कॉर्निश ओगर के पास. जब 7 इयर्स के बाद वो वापस आया तो उसने अपने गार्डन में बच्चों को खेलता हुआ देखा. तो उसे बड़ा गुस्सा आया और बहुत भारी आवाज़ में, बहुत कठोर आवाज़ में उसने क्या कहा, "What are you doing here?" जैसे ही उसने सुना, बच्चों ने जब वो कर्कश आवाज़ सुनी तो सारे के सारे बच्चे वहाँ से भाग गए. "My own garden is my own garden," said the giant. "Everyone has to understand that I will allow nobody to play in it but myself." So he built a high wall all around it and put up a message on the board. जब बच्चे सारे के सारे वहाँ से चले गए तो उसने क्या कहा कि ये हर किसी को समझना होगा कि ये मेरा गार्डन है और इसमें मेरे अलावा कोई भी नहीं आएगा. और उसने दीवार बनाई और दीवार में एक मैसेज डाल दिया. क्या मैसेज डाला? "Trespassers will be prosecuted." Trespassers will be prosecuted. कि जो भी बिना आज्ञा के यहाँ पर आएगा उसको पनिशमेंट दिया जाएगा. Now he was a very selfish giant. The poor children had now no place to play. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they didn't like it. They used to wander round the high wall when their lessons were over and talked about the beautiful garden inside. How happy we were there, they said to each other. अब बच्चों के पास जो है खेलने के लिए कोई भी जगह नहीं थी. कभी कभी वापस आते हुए वो रोड पर खेल लेते थे, लेकिन रोड कैसी थी? बहुत डस्टी थी और उसमें बहुत सारे पत्थर थे. तो स्कूल से आते समय वो क्या करते थे, कभी कभी उस गार्डन में झांक के देखते थे और क्या कहते थे कि हम यहाँ पर बहुत खुश थे. आपस में एक दूसरे से बातें करते थे कि जब हम यहाँ खेलने आया करते थे हम बहुत खुश थे. Then spring came and all over the country there were little blossoms and little birds. Blossoms छोटे छोटे फूल खिले हुए थे. जो स्प्रिंग सीजन जब आया तो वहाँ पे फूल भी खिले और बर्ड्स भी आई. Only in the garden of the selfish giant was still winter. The birds didn't care to sing in it as there were no children, and the trees forgot to blossom. Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. अब विंटर सीजन आ गया, सब जगह स्प्रिंग आया, लेकिन जो जायंट था उसके गार्डन में अभी भी विंटर सीजन था. रीज़न
क्योंकि वो बहुत सेल्फिश था। ना तो वहाँ पे कोई बर्ड गा रही थी, ना कोई फूल खिला हुआ था, और गलती से एक फूल खिला भी तो जैसे ही उसने वहाँ पे देखा कि बच्चे नहीं हैं, वो दोबारा से वापस चला गया और सो गया। It cannot understand why spring is so late in coming, said the selfish giant, as he sat at the window and looked out at his cold white garden. I hope there will be a change in the weather. अब जायंट को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके वहाँ स्प्रिंग सीजन क्यों नहीं आया। उसको उम्मीद थी कि जब मौसम चेंज होगा तो ज़रूर से आएगा। But spring never came, nor did summer. Autumn gave golden fruit to every garden, but the giant's garden had none. He is too selfish, Autumn said. So winter was always there, and the north wind, hail, frost, snow danced about through the trees. Frost, hail and wind, जो बारिश होती है तो उसमें क्या होता है, हवा चलती है, ओले गिरते हैं, और स्नो मॉर्निंग टाइम में या नाइट में भी क्या होता है, चारों तरफ विंटर्स में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो स्नो होती है। तो जायंट के गार्डन में ये सब थे। कोई फूल नहीं था, कोई फल नहीं था, क्योंकि वो सेल्फिश था। इसलिए ऑटम सीजन ने जो है हर किसी के गार्डन में गोल्डन फ्रूट दिया, लेकिन जायंट के गार्डन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पर क्या थे, तेज नॉर्थ विंड की हवाएं चल रही थी, और ओले गिर रहे थे, और फ्रॉस्ट, स्नो, सब जगह वहाँ पेड़ के ऊपर वही दिखाई दे रहा था। One morning, the giant was lying awake in bed when he heard lovely music. It was a little bird singing outside his window. अब एक सुबह उसको क्या सुनाई दी, सुंदर सी चिड़िया के गाने की आवाज़ अपनी विंडो से सुनाई दी। But it was so long since he had heard a bird sing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. बहुत लंबे टाइम से उसने कोई आवाज़ गाने की नहीं सुनी थी, और ये क्या था, बहुत सुंदर उसको लग रहा था, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग उसको लग रहा था। Suddenly the hail stopped dancing over his head, and the north wind ceased roaring, and delicious perfume came to him through the open casement. Ceased roaring मतलब, ceased का मतलब रुक जाना। तो जब जैसे ही वो सुंदर गाना सुना वहाँ पे सबने, तो नॉर्थ विंड रुक गई, और एक अच्छी सी खुशबू जो है वहाँ से आने लगी। I believe spring has come at last, said the giant, and he jumped out of the bed and looked out. अब उसको क्या लगा कि शायद स्प्रिंग सीजन आ गया, तो बेड से नीचे जंप किया और बाहर देखने लगा। What did he see? He saw the most wonderful sight. Through a little hole in the wall, the children had crept in, and they were sitting in the branches of the tree. In every tree that he could see, there was a little children. और जब उसने देखा तो उसको बहुत सुंदर साइट दिखाई दी। वो सुंदर साइट क्या थी? बच्चे थे गार्डन में, और वो पेड़ों के ऊपर भी बैठे हुए थे। And the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's heads. The birds were flying about and twittering with delight. Delight? खुशी से। जब उसने वो सारा सीन देखा तो उसको क्या दिखाई दिया कि सब वहाँ पर बहुत खुश थे, और फूल भी खिले हुए थे, और जो हवा थी, जो पेड़ थे, जब हवा चल रही थी तो वो क्या कर रहे थे, बच्चों के सिर के चारों तरफ अपने इस तरीके से अपने जो टहनियाँ थी वो आ रही थी, जैसे किसी के हाथ उनके चारों तरफ आ रहे हों। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट। जो चिड़िया थी वो भी उड़ रही थी और बहुत खुशी से चहचहा रही थी। एंड द फ्लावर्स were looking up through the green grass and laughing. It was a lovely scene. Only in one corner it was still winter. It was the farthest corner of the garden, and in it was standing a little boy. He was so small that he could not reach up to the branches of the tree, and he was wandering all around it, crying bitterly. The poor tree was still quite covered with frost and snow, and the north wind was blowing and roaring about it. Climb up, little boy, said the tree,
and it bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. अब जब बच्चे वहाँ आ गए थे तो चारों तरफ जो सीन था वो बहुत सुंदर था। फूल खिले हुए थे, चिड़िया चहचहा रही थी, गार्डन का हर कॉर्नर बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। लेकिन एक कॉर्नर में अभी भी विंटर था। वहाँ रीज़न क्या था कि छोटा सा बच्चा पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था, और इस वजह से जो है वहाँ पर नॉर्थ विंड भी थी और हेल और फ्रॉस्ट भी वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। स्नो भी वहाँ पर थी, फ्रॉस्ट भी वहाँ पर थी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो बच्चा उस पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था और रो रहा था। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट। मेल्टेड मीन्स पिघल जाना। किसी को देख करके जब हम बहुत ज़्यादा डीपली फील करते हैं तो क्या होता है, हमारे हार्ट में हमें चेंजेस आ जाते हैं। तो इसी तरह से जो है जायंट का हार्ट भी मेल्ट हो। पहले वो सेल्फिश था, अब वो सेल्फिश नहीं अपने आप को फील कर रहा था। तब उसने महसूस किया कि हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना सेल्फिश हो गया था। ही सेड, नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग डिडंट कम हियर। I will put that poor little boy on the top of the tree, and then I will knock down the wall, and my garden shall be the children's playground forever and ever. अब उसको समझ में आया कि वो कितना सेल्फिश हो गया था। अब उसने सोच लिया था कि जो वॉल उसने वहाँ पे डाली हुई है उसको वो गिरा देगा, और अब अपने गार्डन को वो सिर्फ किस लिए रखेगा, बच्चों के खेलने के लिए। So he crept downstairs and opened the front door softly and went out into the garden. But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away and the garden became winter again. जैसे ही बच्चों ने देखा कि वो नीचे आ रहा है, उसको देखते ही डर के वो भाग गए और दोबारा से उसके गार्डन में विंटर सीजन आ गया। Only the little boy didn't run, for his eyes were so full of tears that he didn't see the giant coming. And the giant stole up behind him and took him gently in his hand and put him on the tree. जब सारे बच्चे भाग गए तो छोटा बच्चा नहीं भागा, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और उसकी वजह से उसने जायंट को नहीं देखा। जायंट भी पीछे से चुपके से आया, उसने उसको गोद में लिया और पेड़ के ऊपर बिठा दिया। The tree broke at once into blossoms, and the birds came and sang on it, and the little boy stretched out his 2 arms and flung them round the giant's neck and kissed him. जैसे ही उसने बिठाया, तुरंत उस पेड़ में उस समय क्या हुआ, स्प्रिंग सीजन आ गया। वो हरा भरा हो गया, चिड़िया आ गई चहचहाने के लिए, फूल खिल गए। बच्चा भी जो है बहुत खुश हो गया था और खुशी से उसने उसको जायंट को अपने गले लगा लिया था और किस भी किया। When the other children saw that the giant was not wicked any longer, they came running back, and with them came a spring. It is your garden now, little children, said the giant, and he took a big axe and knocked down the wall. When the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. Finally, जब बच्चों ने देखा कि अब वो विकेड नहीं है, तो सारे के सारे गार्डन में खेलने के लिए आ गए और जायंट भी उनके साथ में उसने खूब खेला और जो दीवार थी उस दीवार को नीचे गिरा दिया। जब लोगों ने देखा तो उनको वो गार्डन सबसे ज़्यादा सुंदर गार्डन लगा। तो देखा बच्चों, हमें कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए, हमें अपने स्वार्थ को नहीं देखना चाहिए, और जितना हो सकता है कि बच्चे ट्रू प्रॉपर्टी होते हैं किसी भी कंट्री के, तो हमें बच्चों को हमेशा उनकी खुशियों को देना चाहिए। आई होप दिस स्टोरी इज क्लियर टू यू नाउ. It's time to revise. You can revise it.